जब तक मुलज़म को पकड़ेगी नहीं पुलिस, कैसे पता चलेगा कि उनके अज़ाइम क्या थे? ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ पुलिस है, सरपरस्ते आला पुलिस है, उसके पीछे हर होने वाले क्राइम के पीछे, हर होने वाले जराइम के पीछे पुलिस है। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਦੇਣੀ ਇਹ ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर हम मरीद के शहर में मौजूद हैं, जिसमें शबीर की अहलिया ने बताया कि उसके खावन को किस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। शबीर 4 बच्चों का बाप था और मेहनत मजदूरी वो करता था और उसके अपनों ने शबीर ने किसी से कुछ पैसे लेने थे। जब वो पैसे मांगता था तो आगे से उसे यहाँ पर लाकर उसे कत्ल किया और उसकी लाश को जला दिया। शबीर के अहले खाना इस वक्त अपने प्यारे को इस राख में से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये शायद अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन्हें शबीर का कोई ऐसा हिस्सा मिल जाए जिसको वो देखकर उनके दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाए। लेकिन जिन जालिमों ने ये जुल्म की इंतहा की है, उन जालिमों ने शबीर को मुकम्मल तौर पर ही आग लगाकर जलाकर इस तरह की खाक का वो बना दिया था। अब इस खाक में से किस तरह से शबीर को पहचाना गया, किस तरह से शबीर की लाश की शनाख्त हुई और उस लाश की शनाख्त हुई जिसकी शनाख्त मिटाने के लिए इन जालिमों ने यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले से सफ़र तय किया और यहाँ पर ले जाकर उसे कत्ल किया, उसके जिस्म के टुकड़े किए, फिर उसको इस पराली में फेंक कर आग लगा दी। आज शबीर के अहले खाना हाथों में शबीर के जिस्म के टुकड़े, शबीर के जिस्म की हड्डियां उठाए हुए खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा अपना, जिसे कुछ ही दिन पहले वो अपने अहले खाना को, अपने बच्चों को मिलकर उनकी रोजगार के सिलसिले में वहाँ जहाँ पर वो काम करता था वहाँ गया, वहाँ से किस तरह से उन लोगों ने शबीर को एक धोखा दिया, धोखे के साथ उसको बुलाया और फिर उसके बाद उसको इस जगह पर लाकर ये आग लगाकर जला दिया। शबीर की अहलिया मेरे साथ मौजूद है, हाथों में हड्डियों के टुकड़े हैं, कुछ कपड़ों के पीस हैं, ये किस चीज़ के हैं, ये किसके हैं, इसी से बात करके पूछते हैं। बाजी ए तुहाडे हत्थां दे विच की है? ਇਹ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਟ ਦੇਣੀ ਆ ਪੀਸ ਸ਼ਲਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਨੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲਟ ਕਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਲਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਆ ਕੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੁੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਸਾਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਨਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਯੂਸਫ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ 2,05,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2,05,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਦ ਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲਿਆਂਦੀ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ ਫੜ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਫਿਰ ਫੜਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ नहीं ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ नाज़रीन, आप ये अंदाज़ा करें कि यहाँ पर ये सारे घर वाले जो है वो शबीर के उस जाए वकूआ पर जहाँ पर शबीर को आग लगाकर कत्ल कर दिया था, वहाँ पर उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इलाके के जब मुरीद के की बात होती है तो फिर उसके बाद नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसी शख्सियत जब वो अपने इलाके की कोई भी ऐसी खबर आती है तो वो जब खबर देते हैं तो इस इलाके की जो इंतज़ामिया है वो लर्जना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ मियाँ रियाज साहब दबंग सहाफ़ी हैं जो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं और ऐसे अंदाज में नुमाइंदगी करते हैं कि जो हकीकी मायनों में जो नुमाइंदगान है वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ये शख्स जिसको ना तो लालच है इक़्तिदार का, जिसे ना तो लालच है इंतज़ामिया में आने का, जिसे ना तो लालच है कि वो कोई ऐसा ओहदा ले ले जिसके बाद वो अपनी जो अय्याशी की ज़िंदगी है वो गुजारे। लेकिन इस जैसे हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने ये बेड़ा उठाया है कि हम अपने इलाके में होने वाले जुर्म की निशानदही करते रहेंगे और ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाते रहेंगे। इस वाक़े से रिलेटेड हम मियाँ रियाज साहब से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये वाक़या जब इस तरह का इस वीरान इलाके में ले जाकर एक शख्स को जिसके 4 मासूम बच्चे हैं उसको कत्ल करके उसकी लाश को आग लगा दी है, तो इस पर इनका क्या कहना है और पुलिस अब क्या बता रही है कि ये जो कत्ल हुआ है इसके पीछे क्या मकासद हैं, कौन इसके पीछे कातिल हैं और अब पुलिस कहाँ तक पहुंची है, क्या मुलजमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें रोज़ रोज़ बुलाते हैं और हमें खुशी से हम आपके पास आते हैं और आपके साथ मिलकर आपके इलाके की नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं। तो सर बताइएगा कि ये जो जुल्म इस तरह वीरान इलाके में एक शख्स को लाकर कत्ल किया और आग लगा के जला दिया, इसके पीछे असल हकीकत क्या है? सबसे पहले मैं मलक साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीन माने कि ये बात नहीं होती कि हम आपस में दोस्त हैं, ठीक है। मैं जो मेरे शहर की नुमाइंदगी करेगा वो पूरे शहर का दोस्त होगा, मेरा अकेले का दोस्त नहीं होगा। मैं यकीन माने सलूट करता हूँ आपको। ये वो जगह है, मैं आपकी मोहब्बत है मियाँ साहब। मैं ज़ुबैर अवान साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा कैमरे को घुमाएं, ज़रा दिखाएं। यहाँ पर कोई आदमज़ात नज़र दूर दूर तक नहीं आता और आप यहाँ पर आए हैं और मेरा चैलेंज है तमाम यूट्यूबर्स को, चैनल्स को, कि वो आके यहाँ पर इस स्टोरी ये करें जैसी भी हो, कि ज़ाहिर के हक़ाइक़ सामने लेके आएं, जराइम की निशानदेही करें यहाँ पे, जराइम की निशानदेही करें यहाँ पे आके। तो जो भी उनके आने जाने का खर्चा होगा मैं अफोर्ड करूँगा। आए सही यहाँ पे कोई, मैं आपको खराज तहसीन इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप उस जगह पर आए जहाँ पर कोई बड़ी दूर सफ़र करके आए, हमें पता है कैसे गाड़ी लेके यहाँ पे आए हैं, आप साथ ही थे मेरे। और बाकी रही इस केस की बात, तो ये वाकई इस गरीब फैमिली के साथ जुल्म हुआ है। पुलिस को चाहिए कि मेरिट करे, हर लिहाज से मेरिट करे, चाहे कोई मुल्ज़म है या मुद्दई है, उनको मुल्ज़म को पकड़े तो सही ना कम से कम। जब तक मुल्ज़म को पकड़ेगी नहीं पुलिस, कैसे पता चलेगा कि उनके अज़ाइम क्या थे, मरने वाले का कसूर क्या था। वो पकड़ती है, उनसे मुल्ज़म पकड़े नहीं जाते पुलिस से, वो बैठे हैं वहाँ पर अपने कमरों में तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये मामला था या कोई कुछ और मामला था। इसके बारे में जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा मियाँ साहब वो बंदा बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता था। मैंने कहा भी ठीक है। कत्ल हुआ है ये जो जिन्होंने कत्ल किया है? यार कत्ल करने वाले तो इनके हाथ लगते ही नहीं हैं। ये बेचारा मर गया जो बंदा, इसके बारे में कह रहे थे ये बहुत बड़ा कुछ ना रिकॉर्डेड बंदा है। ये मकतूल के बारे में पुलिस कह रही है क्योंकि वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए शायद कह रहे हैं कि चलें ठीक है, अगर या तो मान लें समर डोगर साहब कि ये मर्डर इन्होंने किया है, क्योंकि जराइम पेशा लोगों को मारना पुलिस का काम है, आम बंदे का काम नहीं है। अगर किसी और ने मारा उसे पकड़ें, अगर नहीं तो खुद एडमिट कर लें कि भाई हमने मारा है इसे। जुर्म तो हुआ है ना, जुर्म तो हुआ है ना, जराइम पेशा बंदों को हम मार रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है भाई, जराइम पेशा लोगों को मारें तो जो मेरा शहर अमन हो जाए और जराइम खत्म हो जाए। अगर नहीं है, अगर घर वाले जो मुद्दई हैं वो नामजद कर रहे हैं मुल्ज़मान को कि 4 मुल्ज़मान इसमें नामजद हैं, उनको पकड़ें, पकड़ के उनकी तफ्तीश करें, पूछें कि भाई इसका कत्ल क्यों किया गया, ठीक है। उनके बारे में क्या कहती है पुलिस, उन मुल्ज़मान के बारे में जिन्होंने कत्ल किया? भाई हमेशा जो भी मुद्दई जाता है वहाँ पे हम सवाल करने चले जाएं तो हमसे भी अब एक ही जवाब उनके पास है, भाई हम बहुत करीब हैं मुल्ज़मान के, बहुत करीब होते हैं शायद उनसे कोई माल वगैरह लेने के लिए। भाई रिश्तेदारी भी होती होगी ना, पता नहीं रिश्तेदारी हुआ है या क्या तमा नफसानी है उनका,
भाई इतने ही करीब हो तो पकड़ दे क्यों नहीं हो? जब हम जैसे लोग सब पकड़ते हैं ना कुछ हाँ। और चीजें। कुछ और चीजें पकड़ते हैं, तो जब हम जैसे लोग भी निशानदेही करते हैं, फिर हमें भी खाने को गोलियां मिलती हैं। वही वजह बनती है कि जब हम निशानदेही करते हैं और ये बताते हैं मुलजमान को, भाई ए बंदा तेरे पीछे चढ़े, ये को रस्सा वट लै, एनू फड़ लै, एदा बंदोबस्त कर लै, ये तेरे मगर बड़ा ही आजकल। कि आपका जो कहने का मकसद है कि मुरीद के जो जराइम पेशा नासर है उसके पीछे सरपरस्ते आला पुलिस है। सरपरस्ते आला पुलिस है, सरपरस्ते आला पुलिस है, उसके पीछे हर होने वाले क्राइम के पीछे, हर होने वाले जराइम के पीछे पुलिस है, आला अफसरान पुलिस है। आला अफसरान क्यों नहीं हरकत में आते, क्यों नोटिस नहीं ले? पता नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ कि मरीदके में कोई ऐसा अफसर आ जाए कि जिसकी कुछ सियासी मजबूरी ना हो, कम से कम मरीदके वाले को सुख की सांस ले सकें, अमन से रह सकें, जिनको मिलने में गोलियां ना मिलें, कोई रास्ते में जाता कोई लूट ना जाए। यार बत्ते की पर्चियां यहाँ पे चलती हैं, लूट मार यहाँ पे होती है, डकैतियां यहाँ पे, और यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है, साफी भी महफूज नहीं है। जब किसी पुलिस वाले के साथ ऐसा मामला होता है तो वो अगले दिन वो बंदा कैफरे किरदार में पहुंचा हुआ होता है, 24 घंटे नहीं गुजरते। उसकी लाश पड़ी होती है कहीं, यार ये बंदा ये हमें मारा था। भाई हमें भी पुलिस की वर्दियां दे दो, हम भी पहन लें। जब हमें को गोलियां मारे तो फिर आप ज़ाहिर है पकड़ के उस बंदे का एनकाउंटर तो करें ना, फिर ज़ाहिर है वो मरना तो उसने अपने साथियों की फायरिंग से ही है। मियां साहब इस केस को आप किस तरह से देखते हैं? इससे पहले भी 1 साल पहले हमने इसी तरह पराली के अंदर एक मासूम बच्चे को जिस तरह कत्ल किया और उसको जला दिया था, ये दोबारा से फिर केस आ गया उसी तरह का। यार वो पुलिस गुजरांवाला की थी, उसने टेस्ट किया वहां से आके, वो मुलजम अभी तक पकड़ा हुआ है वो, लेकिन ये पुलिस मरीदके की है। मगर ये मुलज़म पकड़ने की बजाय मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ कि अभी हमने वो डीएनए के लिए भेजी, अच्छी बात है यार, जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, मे भी हो सकता है ये शबीर ना हो, घर वाले कह रहे हैं ये शबीर है, अच्छा, पुलिस कह रही है कि ये जो लाश मिली है ये शबीर की नहीं है। शबीर की नहीं है, हो सकता है शबीर ना हो, जब डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, डीएनए हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये शबीर है। लेकिन उसकी अहलिया, उसके कपड़े, उसकी निशानियों को पहचान रही है। हाँ, लेकिन शायद पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? इनके मुलजमान जो मुलजम नामजद किए हैं इन्होंने, उनको तो पकड़े। जो पुलिस ने इनकाउंटर करना होता है अपने किसी अहलकार के शहीद होने के बाद, वो मुलज़म मुनी पुलिस को पता नहीं होता मुलज़म कौन है। ये तो मुद्दई चीख-चीख के कह रहे हैं, अभी हमारा मुलज़म यूसुफ है, हमारा मुलज़म बशरी है, हमारा मुलज़म वो दूसरा नवाज़ है, हमारा मुलज़म मिट्ठू है। पकड़ें यार, अगर वो बेगना है तो उनको लाएँ सामने, खड़ा करके वो उनको बेगना करके छोड़ दें। पकड़ें तो सही ना यार। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो जाए वक़ूआ था जहाँ पर शबीर को कत्ल कर दिया गया, जहाँ पर शबीर की लाश को आग लगाकर इसी तरह खाक बना दिया गया। लेकिन पुलिस ये कहती है कि ये लाश या फिर लाश के जो हिस्से या बाकियात मिली है वो शबीर की नहीं है। लेकिन शबीर के अपने कह रहे हैं वो उन लाश के टुकड़ों को, वो लाश के उस कपड़े वहां से जो मिले हैं और जो दूसरी चीजें मिली है उनको पहचान कर ये बता रहे हैं और चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये हमारा शबीर है, ये मेरा शबीर है जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब पुलिस मकतूल पर इल्जाम लगा रही है तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस अपनी नाअहली को छुपा रही है। थाना सदर मुरीद के पुलिस हो या फिर सिटी पुलिस हो, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये कसम उठाई है कि हमने किसी भी कातिल को गिरफ्तार नहीं करना, हमने किसी भी मजलूम को इंसाफ नहीं देना। लेकिन इस जैसे हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो चीख चीख कर आपके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे, आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करते रहेंगे और आखिरकार आपको ये करना पड़ेगा और इन कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके हवालात की सलाखों के पीछे डालना होगा, नहीं तो फिर हम आपका पीछा करते रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।